for you. I'm going to share this PDF in a group where it can reach out to everyone. जो आपकी केस स्टडी एग्जाम्स में आएंगी वो इसी पैटर्न पे आएंगी. अगर recently you guys are aware, Twitter is facing a backlash in one of the countries where the government asked them to ban few of the people, and Elon Musk said, "Can you give me proof that they are creating a distress on the social media site and I will ban them. Otherwise I would not ban it." तो उसकी रिटेलिएशन में उस कंट्री ने कहा कि वी वुड बैन ट्विटर ओनली, वी डोंट वांट ट्विटर इन आवर कंट्री एनी मोर. दिस सब्जेक्ट आज से अगर आप 10 साल पहले बोलते तो आई वुड हैव सेड कि इट वाज जस्ट इम्पॉर्टेंट, बट इन टुडेज वर्ल्ड it is one of the most important things because a lot of backlashes organizations are facing based on ethical and moral dilemmas. This is Costco model. I give you 10 minutes to read it. I'll be scrolling through the pages. When you're done with the first page, you tell me, I'll scroll to the second page, and the third page carries the question which we need to discuss, and then we'll discuss it. Can we start? Can we move to the second page?
आ जाओ गेट, चलो ठीक है आप आगे. Can we move ahead? आप पीछे जो रेड में है बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. आपसे बात करूं जिसका सिर मुड़ा है, द गाय इन द रेड टी शर्ट. आपसे आगे जो है बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. आगे आ जाओ, अगर आवाज़ नहीं आएगी आपकी. आंसर क्या है? I know that you did not see any video, but whatever was written in the write up, using that, what could be the best practices? अभी रुकना. हाँ सर. हाँ सर बताओ आंसर. यू वर डेफिनेटली रीडिंग द केस स्टडी. हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ. हाथ क्यों दिखा रहे हो? आंसर मांगा है. आपके साइड में जो वो बता दो, राइट लेफ्ट में. हाँ सर क्या आंसर है? क्यों? केस स्टडी थी वो तो केस में गिवन था. पढ़ा नहीं आप लोगों ने? सर एटलीस्ट आंसर पढ़ा नहीं आप लोगों ने? क्यों? एनीवन एल्स हु? हाँ सर बताइए. हाँ okay. How many of you agree to him? He is saying that Costco is paying 40% more to its worker. That is how he is keeping his employees happy, and that is why they are more productive. Do you think that productivity has anything to do with what you are paying? Is it true? Yes sir. See, these case studies are based on what we did in the last two classes when I was telling you about morality and all the principles which will lead to personal ethics, will lead to corporate governance and business ethics. So they are trying to have a fair practice in terms of payment. In terms, सर आप दोनों अभी भी बात कर रहे हो प्लीज़. In terms of remuneration. Do you think what he said was true? He said that if you are able to pay people more, if you are able to hold that family kind of a bond, you would have a productive population in terms of your organization. Whatever workforce you would have, it will be productive. Is it true? If what he said is true and what you guys are saying true, then why is government organization not having productive people? Why are they in debt? Why is the government privatizing? The government is treating their employees as their family. It's giving the housing free of cost almost in good areas. It is giving so many services. The health benefits are there. In terms of payment also, they are paying more
than a starting salary in a private organization. It could be in terms of growth, it may be less, but in other aspect, it's paying a very good package. Then why is the government not able to perform well? Why do they have to opt out for a solution of privatization? And what is working for Costco and is not working for government? Yes, 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 please. Okay, but what we are trying to understand here is how can we curtail a problem without it arising? Corruption is a byproduct of a not so much inclined moral compass. That is what we are trying to solve here. So even corruption can be solved. Like even the reason for corruption has practical examples. Like you have to make a wage competitive enough with a private employee, and then you can curtail corruption to a very large extent. But this is not the argument here. We are trying to understand that if we treat a family like employees, we pay them well, as the government is doing, the Costco is doing only with the difference that they can lay off the employees whenever they want. A government cannot lay them off. Will this kind of problem again arise in our organization? And if this problem arises in our organization and we stop paying them well, will be called unethical? Then it is a problem of morality of the organization, that the organization is not moral enough. The question here is, if you see an Indian organization which is similar to Costco, which organization comes to your head? Tata. So can we assume, this is just a question, please, I am not inferring anything. Is Tata ethical because it wants to stay ethical, or it does not have any other option now? Because whatever brand equity they actually are having, it is because of their ethical side. Wherever you go, they are justifying the cost using ethics that we are giving back. But at the same time, it is not ethical to consumer. You're even extracting it. You're decreasing the disposable income of a consumer. You cannot say that I'm decreasing the disposable income because I'm redistributing. So redistribute it through your profit. Why do you have to take it back from the consumer? Right? So how can we answer the first question? Do you, first of all, does this class consider it as one of the best practices? Should employees be paid more than their competitive companies? Will it inculcate loyalty among employees? What else can be done to inculcate loyalty among employees? आ जाइए. Okay. What else? But that would not be possible for everyone. Okay. Training and development. Okay. Let's come to the second question. Who would like to answer it?
They're asking that Walmart is paying 40% lesser to their employees in comparison to Costco. How are they able to stay in business when they are a direct competition? Any Indian companies where this differential exists, where there are two competitors which are actually dominating the whole industry? Tata and Reliance, okay. But when Adani comes into picture, there are three companies. They're not two major companies. This is an example where there are two major companies, Walmart and Costco. Zomato and Swiggy would be a good example. Fli- Ola, Uber, Flipkart and Amazon, Pepsi and Coca-Cola. When they're operating in the beverage industry, Pepsi and Coca-Cola are dominating the market. Britannia, Parle. So how would they actually do, stay in business when they're paying them 40% more? These benefits, as per the case study, were in the form of salary. Costco has actually more. Okay. So this, what does that mean? Means that see they are talking. हाँ बोलो. Complete. अरे सॉरी की ये बात है कुछ भी बोलो. हाँ. हाँ. I think they even made that point to just show that working in Costco is much simplified. Like it is much simpler than working in Walmart in terms of job also. They're saying that even the job is more simpler and still they're able to pay more. That is why it will make a case study, right? When it is a case study, this means that this behavior is not normal. It is not well understood by the industry what is really happening. And other players are not able to inculcate this kind of behavior in their organization. So they actually want to learn more that how are they able to do it. So imagine that both of them are having the same amount of profit. Both of them require money to work. How is Costco able to afford it? And Walmart is not able to do that. Walmart would also want, higher payment scheme. Why? For employment retention. I was going through reels on Instagram and I came through a reel where they said that US major startups are actually aiming to open their office in tier 2 industry, tier 2 cities rather than tier 1. And when they were asked the reason to do the same, so they said that we require at least 7 years of work from an employee for him to become beneficial for us. We do not want an attrition rate high. We do not want someone to leave our company within 2 or 3 years. So people in tier 2 city have a higher community bond, so they stay in the workplace for a higher span of time. So will a higher payment, you know, always motivate the employee to stay in the company. So you're understanding na कि for Walmart they are losing on in terms of employees as well. Good employees would always choose to go to Costco than to stay in Walmart. So how are they able to do that? They cater to, okay. So ma'am says that they are catering to a customer base which has high paying capacity, which is already, fluent in terms of money and has a well defined choices.
That was given in the case study. What else could you assume while answering this question? I am actually telling you the question which you are going to see in the paper are going to come in this form only. See, why we put in time? Because it's going to come for 20 marks out of 70 marks. That means 30% of your paper is defined by this class itself. It is not about who's present, who's absent in the class. It's always about discussion. Whenever you will be actively part in a discussion, problem solving, puzzle solving requires you to engage with puzzles as much as you can. I could have given this directly to you guys, you wouldn't even have practiced more than 3-4. That is it, because of the paucity of time. We are taking the valuable time of the class for discussion so that you are able to join dots from last classes. You have to give your inputs. Guys, don't focus on variables which are not important. There will always be two kind of people, who succeed and who fails. And that is actually, ऐसा नहीं होता कि टीचर की आंखों में कोई दूरबीन होती है कि उसे दिख जाता है फ्यूचर. डिसिप्लिन से पता चल जाता है कि कौन लाइफ में सक्सेसफुल होगा और कौन लाइफ में फेलियर होगा. विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नेवर सक्सीड, चाहे आप कुछ बोल दो. एंड इन द वेस्ट दे से दैट इट्स नॉट माई फर्स्ट रोडियो. मैं पहला बैच नहीं पढ़ा रहा. And in terms of recruitment, I have recruited from 5 reputed colleges over the span of 4.5 years of my corporate experience. वो दिखता था जिन बच्चे, ऐसे बच्चे भी होते हैं इंटरव्यू में जो बैठ जाते हैं, केस स्टडी को छोड़ते ही नहीं है. दे जस्ट डोंट टेक नो फॉर एन आंसर. दे लाइक नो, वी विल डू इट, आप मत लेना हमें, पर हम आंसर दे के जाएंगे. Coming back to the topic, what else could you say in this case? If you have to answer second question, how are they able to? Yes, ma'am. Hmm. Okay, she says that Walmart would experience a higher training and acquisition cost than Costco. Costco could actually work with a slow staffed HR department because their attrition rate will be very low because of the high payment structure. See, this is important also because Walmart does not have a lot of profit ratio. Walmart does not work on high profits. It works on low profit, works on quantity game. They try to maximize the sale. But as rightly said, this ट्रेनिंग कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई कॉस्ट. अगर आप कभी बैलेंस शीट उठाओगे, जो मिसलेनियस कॉस्ट होती है उसमें ही ट्रेनिंग और ये एम्प्लॉय एक्विजिशन कॉस्ट आती है. सेकेंड थिंग इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे आर हायरिंग for Walmart to perform the task, because they are not paying well enough, the productivity is low, so they have to employ more number of employees. Whereas Costco, the productivity is higher, they have to employ less number of employees. So you can state these 3 reasons, one given in case study and 2 which you can directly take out from the case study by your previous knowledge. Third, what do you think are the most important practices for a retail company to pursue to foster an ethical environment for workers and consumers, and why? Imagine that you are owner of a retail company, ठीक है? What ethical environment, what kind of ethical environment would you like to create? A, for first, for employees. What would you want for your employees? What do you mean by safe working environment? जैसे क्या सेफ्टी हैजर्ड्स हो सकते हैं रिटेल में? Oh, in terms of disaster and all. So she says that the first thing she would want would be a safe environment where the building is disaster proof, fireproof. It's in a seismic zone which does not have a lot of earthquakes and stuff. What apart from that? Yes, sir.
emphasize on, okay. How would you emphasize on the development and growth of employees? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे ना हम Is it possible for any company to know what are the development goals of an employee? And can an organization always come in sync with the employee development goal? it depends like if they are doing a career planning and they are implementing those career planning strategies within an organization where they are seeing like how the employee has been performing like when he or she joined the organization and how the growth pattern has been throughout the span, and then accordingly they are developing the career plan of an employee and accordingly putting in the training and the development strategy. Okay. But what if the two employees have same career plan and there is only one position? Then the organization would actually be breaking the code of conduct. If this is one of the code of conduct, a unsaid norm, see, ethics is an unsaid norm, culture, attitude in a group of people which is inoculated with time or in an organization. So if your organization say that we will always support you in your career plan, and one fine day you say that I want to become CFO and I have to move to London, ठीक है, offer me tickets or give me a job in your London branch, and that might not be possible. So they would actually be breaking the norm or the code of conduct they have created. And then you might say that, it's unethical. So is it possible for an organization to be in sync with your career goals? Or your personal goals have to be in sync with the organizational goals? You do understand the differentiation between two, right? Personal goal is how do I make and chart out my journey, that where do I want to go and how do I want to do it. ठीक है. Organization goals may be very different from that. So if an organization thinks that they have to build a unicorn, they have to do 1 billion business, that might be very different from your goal. So while this happens, what does one do? Fair treatment. Okay. How would you ensure fair treatment in an organization? What should be the rules of a fair treatment? Equal opportunity. Equal opportunities. Okay. Equal opportunity in terms of opportunities, like whether you're talking about promotion or you're talking about some, external client, an outdoor meeting, everybody given an opportunity. What else? Appreciation if the employees are performing their task on regular basis. Okay, he's saying proper appreciation. Work distribution as the post. क्या? Work distribution as per the post. ओके. कभी आईटी वाले को वो फाइल का काम दे देते हैं तो उससे भी But have you guys noticed that if you go in a rigid organization where the work is actually very strictly imposed, कि आपको यही काम करना है, actually the growth in such organization is at a lower pace than growth in a startup where you are made to do every task. एंड ये जो आप स्टॉक ऑप्शंस भी कह रहे थे वो भी स्टार्टअप्स में ज़्यादा मिलते हैं. मतलब एक्सेंचर में आपको स्टॉक ऑप्शंस मिलना बहुत मुश्किल है. इट इज़ एट द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड अबव. बट स्टार्टअप में इवन इफ यू वुड बी लीडिंग अ टीम, यू वुड हैव स्टॉक्स इन योर हैंड. So is it possible to define a role when you're actually starting? When you say that we want to foster a ethical environment, what are the three basic principles of any ethical environment? Empathy. See, you guys have stated fairness, unbiasedness, ठीक है, a strict morality or code of conduct, ठीक है. Now the task come, how would you define what is fair and what is unfair? Understand, because the definition of fairness also changes when you're talking it in terms of, personal ethics and when you're talking in terms of corporate ethics.
So somebody told that when we get equal opportunities, we get every facilities, and the people who are hired at the same level, they receive the same treatment, then it is fair. What else could be added? You see a lot of CEOs who are male, but the ratio of female CEOs is much lesser. Do you feel that there is fairness? How would you ensure that the same system does not happen in your organization? Many organizations do not keep female high level executive as the first choice of CEO. They don't explicitly state that, but implicitly it's implied. They will not get the vote of confidence. The selection procedure would be such that it would be biased in favor of the male gender. That is why they say that 87% of the CEOs in India are male. How would you ensure that this does not happen in your organization? And can this be ensured? Can this be ensured, guys? True. The mic is not working. और क्या हो सकता है इसमें? What would you do for the consumer? Am I audible till the last? आप कंज्यूमर के लिए क्या करोगे? न्यू सर्विसेज न्यू आइडियाज लेके आएंगे क्या न्यू आइडियाज? लाइक कंज्यूमर खरीदे होगे बाहर से दिस कैन एक्चुअली कम. उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या न्यू आइडियाज लाओगे. लाइक डिमांड्स कर जो हमारी अभी एंड ऑनेस्टली अगर ये पेपर मैंने चेक किया और इसमें आपने वर्ड लिखा तो हो सकता है कि फेल हो जाओ. आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैं शुगर कोट नहीं करूंगा इसको, और ये पेपर मैं ही चेक करूंगा. डू नॉट लीव इट ऑन अ वेग टर्म. आप बताओगे तो कि आप करोगे कि आप MBA के स्टूडेंट्स हो, आपका ये सेकेंड ईयर चल रहा है. अरे सर सबको एक साथ ही आप समझ रहे हो ना. अगर मेजरली जब भी रिक्रूटमेंट होता है, एवरी ब्रांड गिव्स अ केस स्टडी. तो एक टेक्निकल केस स्टडी होता है, एक एथिकल केस स्टडी होता है. उसके सोल्यूशन पे रिक्रूटमेंट करते हैं ऑफ MBA पीपल. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो तो अलग बात है, अगर आप स्विच भी करोगे तो भी आपको केस स्टडीज करनी पड़ेंगी. दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ नाउ. तो यू कैन नॉट लीव इट ऑन अ वेग टर्म. अगर आज आपको वेग टर्म पे मैंने आगे सरका दिया तो कल आप मुझे वहाँ पे गाली दोगे, काश उस टाइम पे कोई बता देता. तो मैं नहीं सरकाऊंगा. मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ झूठ भी नहीं बोल रहा. अगर कोई सोच रहा है कि एक शब्द वन वर्ड करके वो पास हो जाएगा, शर्त लगा लो नहीं होगा. दैट इज नॉट हाउ आई डू इट. इसलिए मैं अभी आपको क्लास में कह रहा हूँ, आस्क मी क्वेश्चन, प्लीज डिस्कस. सर न्यू आइडियाज ऐसा लाएंगे जो डिमांड हो रही है अभी डिमांड चल रही है मार्केट में, वो आइडियाज हम लेके आएंगे. जो डेवलप नहीं हो पा रही है वो हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे. लाइक किसी इसकी कमी हो रही है, लाइक एम्प्लॉय What do consumer wants from an organization?
क्वालिटी गुड्स, quality goods, गुड प्राइस, right, राइट, वैल्यू फॉर मनी, राइट. अगर हर ब्रांड वैल्यू फॉर मनी देने लगे टोटलिटी में, कैन द ब्रांड्स वर्क? no sir, no need. सो हाउ डू अ ब्रांड डिसाइड कि क्या प्राइसिंग रखनी चाहिए? वेदर शुड आई बी ऑन अ लो इनकम प्राइस और अ हाई इनकम ग्रुप? बट इज दिस सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन मार्केट और इंडस्ट्री? और ये सेगमेंटेशन इज नॉट बेस्ड ऑन मार्केट इंडस्ट्री, इट इज बेस्ड ऑन परसेप्शन. Perception होगा sir. क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री पे बेस्ड होती तो क्लोथिंग इंडस्ट्री में जो हर कोई यूज करता है, यू वुड नॉट हैव लग्जरी ब्रांड्स. क्लोथिंग तो सभी इस्तेमाल करते हैं ना. तो एलवी अगर आज अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है, वो अपने प्राइजेस 50% स्लैश कर दे, रेवेन्यू बढ़ जाएगा. एक बूम तो आएगा. जब तक बाकी लोगों को समझ आएगा कि एलवी इज नो मोर अ लग्जरी, इट वुड बिकम अ कॉमन ब्रांड. बट वो स्टार्टिंग का गेन इतना ज़्यादा होगा कि दे कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बट दे आर डूइंग इट. तो प्राइस तो हम स्लैश नहीं कर सकते, प्राइस इज अ परसेप्शन वाला थिंग. फिर कंज्यूमर को वापस कैसे दे सकते हैं? USP देते हैं, like हर brand की USP होती है. ओके, हाउ डज द ब्रांड मेक दैट यूएसपी? आप लोग पीछे कहाँ जा रहे हो? आगे बैठो. Costco and Walmart के केस में ये हो सकता है कि उनके जो भी SKUs है उनको sorted करके रखें arranged way में, organized way में, ताकि अगर कोई भी customer जाए तुरंत उनको ले ले और निकल जाए, उसका time save हो. चलो हम मानते हैं कि आप लोगों ने एक ब्रांड एक्स खोली है विच इज सिमिलर टू वॉलमार्ट एंड कॉस्टको. ठीक है, आपका नहीं, आप कंज्यूमर को देना चाहते हो वापस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी. आपने कंज्यूमर को दिया, कॉस्टको ने भी प्राइसेस स्लैश कर दिए. नाउ यू आर इन अ प्राइस वॉर, बट दे हैव बिगर पॉकेट्स. तो दे कैन सर्वाइव 5 सीजन, यू विल ओनली बी एबल टू सर्वाइव 1 सीजन. देन what would happen? You would go bankrupt, you would not have assets, और आपको कॉस्ट को ही एक्वायर कर लेगा. तो शुड अ ब्रांड नॉट गिव बैक टू द कस्टमर? लॉजिकली सोचना, अगर आप प्राइस वॉर में उसके साथ घुस गए जिसके पास बिगर पॉकेट्स, आप जीत ही नहीं सकते. एयरटेल वेंट बैंक करप्ट इन अफ्रीका, वो जियो के साथ प्राइस वॉर में घुस गया. एयरटेल डज नॉट हैव एनी एसेट्स नाउ इन अफ्रीका. They had to sold major shareholdings in Africa because Jio has bigger pockets. तो जो नया इक्विलिब्रियम आएगा मार्केट में, उसमें तो आपकी ब्रांड वाइप आउट हो जाएगी. तो फिर आप कैसे दोगे कस्टमर को? वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ना कि हम कस्टमर को इन फॉर्म ऑफ प्राइस वापस नहीं दे सकते. वेरी ट्रू सर, नहीं होता. आप सही कह रहे हैं, ये मेन रीजन है क्यों नहीं होता. पेप्सी और कोका कोला के बीच में भी अनसेड है कि हम प्राइस में कभी नहीं करेंगे, दोनों का नुकसान होगा. पर जो नया ब्रांड एक्स आया वो कैसे अट्रैक्ट करेगा? अगर मेरे को दिखाना है कि मेरी ब्रांड ज़्यादा एथिकल है, तो वन वे टू शो इट इज प्राइसिंग. Xiaomi ने यही किया ना जब वो इंडियन मार्केट में एंटर करा. Xiaomi से पहले कभी आपने सुना था कि फोन, स्मार्टफोन 6,000-7,000 में मिल सकता है? दे एंटर्ड, उनका यही प्रोपोजिशन था, क्योंकि उनके पास चाइना की मार्केट थी. दे वर न्यू इन इंडिया बट दे वर न्यू इन नॉट इन द इंडस्ट्री. मतलब वो एप्पल के लिए भी मेजर प्रोडक्शन कर रहे थे थ्रू वेरियस सब्सिडीज. तो उन्हें पता था कि अगर एप्पल प्राइस वॉर में भी आ जाएगा तो चाइना मार्केट सपोर्ट कर लेगी. एंड उसका आज आप रिजल्ट देखिए, Xiaomi हैज पेनिट्रेटेड द इंडियन मार्केट एंड सो हैव अदर चाइनीज ब्रांड. मैम क्या चाहिए आपको? पता नहीं वो कुछ कह रही थी. सॉरी, आप जाओ आराम से. बट कैन यू एक्चुअली डू इट इफ यू आर अ न्यू ब्रांड? एक तो हो सकता है कि आप ओल्डर ब्रांड हो, आप कंज्यूमर को वापस दे दो, क्वालिटी दे दो, गिफ्ट्स दे दो. अगर आप नई ब्रांड हो फिर क्या करोगे आप इस पे?
ओके ओके कैशबैक पैसा खर्च करना चाहिए, वेरी ट्रू। पर उससे कस्टमर को कैसे वापस मिलेगा? उससे आप कस्टमर एक्वायर तो कर लोगे, पर वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग बैक टू द कंज्यूमर, राइट? कंज्यूमर को आप दे तो एक ही तरीके से सकते हो ना, कि उसने 100 रुपये का सामान लिया हो तो उसे कम से कम आप 60 रुपये का दो, अगर बाकी ब्रांड्स 50 का दे रहे हैं। माई पॉइंट इज कि अगर आप 60 का देने निकल पड़े, बाकी ब्रांड ने भी सोचा कि हमें इसे ख़त्म करना है मार्केट से, ये पेनिट्रेट कर रहा है, और वो 55 का देने लग गए, फिर क्या करोगे? एग्जैक्टली तो घटते घटते आप तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाओगे। कितना घटा लोगे? मतलब पेप्सी 1 रुपये में बनती है 1 लीटर, 2 रुपये में बन जाती होगी, 3 रुपये से ज़्यादा, 4 रुपये से ज़्यादा में नहीं बनती। बाकी सब उनका मार्कअप है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत हाई है, वो कस्टमर को रिटेन करने की कॉस्ट बहुत हाई है, उनके एग्जीक्यूटिव्स को वो बहुत हाई पे कर रहे हैं। अब जितनी भी नई ब्रांड्स है क्यों नहीं आ पा रही सॉफ्टवेयर ये बेवरेजेस में? क्योंकि वो उसके साथ वॉर पे जा ही नहीं पाती, वो थोड़ा सा पेनिट्रेट करती है, पेप्सी खरीद लेती है, कोका कोला खरीद लेती है। कोका कोला हैज़ मोर देन 300 प्रोडक्ट्स अंडर इट्स एम्बिट, डॉक्टर पेपर सब उनका ही है, उन्होंने एक एक करके सबको एक्वायर कर लिया। ये मिरिंडा इंडियन ब्रांड थी, इट इज़ एक्वायर्ड, लिम्का एक्वायर्ड, फ्रूटी एक्वायर्ड, थम्स अप, तो वो एक्वायर करते रहते हैं। हाउ वुड यू स्टॉप दैट प्रोसेस? क्योंकि इन दी एंड हो सकता है कि ये ब्रांड जो एक्वायर कर रही हो, लीगली इट इज़ राइट, बट मॉरली इट्स नॉट राइट। अगर आप लीगैलिटी वर्सेस मोरालिटी देखोगे तो लीगली इट्स करेक्ट, वो कुछ गलत नहीं करे, पर मॉरली दे आर डूइंग एवरीथिंग इज रॉन्ग, दे आर नॉट लिविंग एनीथिंग फॉर द कंज्यूमर टू टेक। कंज्यूमर क्या करेगा? अगर आप जितनी भी आपने कभी कोई बुक पढ़ी होगी स्टार्टअप पे 0 to 1, हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड, they talk about customer penetration, they talk about creating that image of ethical branding. The old brands are doing it. जो पहली लेदर की ब्रांड्स है, Lacoste used to make belts using crocodile leather. They say now we use cactus से made leather. We are no more using animal leather. वो सर्टिफिकेशन देता है कि जो भी एनिमल था उसने ड्यू लाइफ जी है, उसकी डेथ हुई है नेचुरली, फिर हमने यूज़ करा, हमने किसी एनिमल को नहीं मारा। तो आप समझ रहे हो कि एग्जिस्टिंग ब्रांड्स भी अपने आप को एथिकल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज रेवेन्यू। तो नाउ इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द न्यू ब्रांड्स, हाउ विल दे डू इट? एम्प्लॉयज़ को देने का तो बहुत सही तरीका है, वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल कर दो, फेयर कर दो, हाइब्रिड मॉडलिंग कर दो, ऑनलाइन ऑफलाइन, पेमेंट्स इजी रखो, बेनिफिट्स दो। आपके पास 6 पॉइंट, कंज्यूमर के लिए क्या करोगे? कंज्यूमर के लिए जो बेर बेसिक कर सकते थे वो था कि डिस्काउंटेड प्राइस रखते, बट उस पर आर्ग्यूमेंट ये उठ रहा है कि अगर डिस्काउंटेड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। अभी आप किसी भी हाइपर मार्ट पे जाओ, उस पर पेप्सी पे बाय वन गेट वन नहीं होता, पर जो लोकल बेवरेजेस है बाय वन गेट 3, बट लॉट ऑफ अस डू नॉट बाय इट। जबकि 4 मिल रही होती, हम कहते हैं यार पता नहीं कैसी बनी होगी। देन वी स्टार्ट ड्वेलिंग अपॉन द क्वेश्चन ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सी प्राइसिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड, कि वो कस्टमर को कैसे सिग्नल कर रहा है। प्राइसिंग कई बार क्वालिटी भी सिग्नल करता है, प्राइसिंग कई बार ब्रांड के एथिक्स भी सिग्नल करता है। सपोज जैसे क्रोमा एक यूनिट है टाटा का, उसने ऐसी इमेज बना रखी है कि अगर वो अपने एलईडी या एलसीडी पे कभी कम प्राइस टैश करता है तो लोग जाके उसे खरीदते हैं। अगर वो आईफोन पे प्राइस कम करता है, कैशबैक करता है, तो लोग वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं आईफोन, बिकॉज दे नो कि वहाँ पे नकली माल नहीं होगा।
बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो बाहर जो लोकल सेलर्स हैं वो आईफोन 40K का 50K का बेच रहे हैं लेटेस्ट, एंड पीपल आर नॉट बाइंग एंड दे स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रूव देमसेल्फ एथिकल। आप ये ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड कर पा रहे कि आईफोन असली है। आपको लग रहा है कि 50,000 खरीद लिया और नकली निकला, फिर क्या करेंगे? वेयर विल यू गो? विच शोज कि अगर किसी ब्रांड को सस्टेन करना इन द लॉन्ग रन दे हैव टू बी एथिकल। तो वो कंज्यूमर के सामने एथिकल कैसे हो? आप वाला अभी चल रहा है एग्जैक्टली जब भी कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट निकालती है तो उसमें बाय वन गेट वन इंट्रोडक्टरी ऑफर, पहले जो प्राइस वो बेचना चाहते हो, जिस प्राइस पे 400 का बेचना चाहते हो, उसे कट करके 300 दिखाएगी। दैट इज ऑल अ वे ऑफ सिग्नलिंग टू योर हेड कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। आप ट्राई तो करो, बाकी हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे। बट द सेम टाइम दे आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट द मार्केट। नहीं नहीं बेकार। ओके he's saying that you can apply a pricing mechanism where you can actually discriminate consumer on the basis of their paying capacity to create a customer loyalty in different groups. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि एक स्टूडेंट की परचेजिंग पावर नहीं है आईफोन की, बट आपको उनसे आईफोन खरीदवाना है, तो आप उन्हें बोल दो कि स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये प्राइस है एंड यू स्ट्रिक्टली एडहर टू इट। सो दिस वाज सिग्नल टू द स्टूडेंट और द कस्टमर। This is being used by PVR cinemas as well. This is used by many corporates. They have different way of actually, giving this message कि हम लोग बहुत ethical हैं, हम उतना ही पैसा लेंगे जितना बनता है। DMRC भी यूज़ करता है। They have a height metric कि इतने से कम हाइट पे आपकी नहीं लगेगी। This could be one way of doing it. ट्रू, यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन द कंज्यूमर जिसके पास आगे परचेजिंग पावर आ रही है। आप उसे तब सपोर्ट कर रहे हो इन इट्स मोस्ट डेंजरस टाइम्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो दैट टाइम व्हेन यू आर गिविंग देम एंड यू आर एसोसिएटिंग देम विद अ ब्रांड, दे विल इन द फ्यूचर ऑल्सो एसोसिएट विद इट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल एक लौती ब्रांड है जिसे स्टूडेंट्स भी चाहते हैं लेना और वर्किंग प्रोफेशनल भी चाहते हैं। इट इज़ नॉट कि आज स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने Xiaomi ले लिया एंड वंस ही स्टार्ट अर्निंग इज लाइक कि चलो अब मैं नहीं लूँगा। वॉट एल्स कैन बी डन? दिस इज वन वे। कौन सा? ओके, गिविंग देम फ्लेक्सिबल ऑप्शंस ऑफ पेइंग। Why is it a good method? ये पे लेटर से क्या पता चलता है? क्या? Doesn't it give you the message the brand is going to stay for a longer run? If you have a पे लेटर वाला ऑप्शन, आप कह रहे हो कि आप 2 महीने बाद पे कर दो, इसका मतलब ब्रांड इज देयर फॉर अ लॉन्गर होराइजन। जैसे आपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप EMI पे लेते हो। सपोज यू गॉट अ BMW फॉर EMI और कल को BMW वाले चले जाएंगे, ठीक है, यू टेकन अ लोन फ्रॉम BMW इटसेल्फ, तो आपके लिए तो फ़ायदा ही है। जब BMW ही नहीं तो पैसे कौन लेगा? बट एट द सेम टाइम आर दे गिविंग अ सिग्नल टू द मार्केट कि 10 साल तक भी हम यही रहने वाले हैं। अगर आपको इस आइडिया की वायबिलिटी चेक करनी है, आप कंस्ट्रक्शन कंपनीज में चेक करो। काफ़ी कंपनीज ऑफर द ऑप्शन के आप बुकिंग के टाइम पे फ्लैट बुक कर लो, ठीक है, एंड यू गिव दिस मनी और कंप्लीशन तक आप 80-90% दे दो।
बट एट द सेम टाइम सम कंपनी से कि आप 40% पे करो, व्हेन इट गेट्स कंप्लीटेड यू गिव अस 60%. व्हेन दे डिड अ स्टडी इन दोनों में कि किस केस में ज़्यादा ट्रस्ट बनेगा, इट वॉज इन द सेकेंड केस. लोगों को लगता है कि अगर 80% हमने पे कर दिया फॉर सम अननोन ग्रुप और हम रेस्ट सिर्फ 20% रहेगा, उसने हमें फ्लैट नहीं दिया, तो हम क्या कर लेंगे अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन. So most of the people will go to companies which are recognized name, and that is what led Godrej to enter this industry. Dalmia Group और Godrej is investing heavily in Delhi क्योंकि उनका बहुत strong market में foothold है और नाम है. ठीक है. Anything else which could be done? हाँ, क्या हो सकता है? Product warranty, okay. Okay. They're saying कि after sale services, which is one good example, is product warranty. Maruti in their initial ads used to say कि you guys know the Maruti fiasco. मारुति ने मैन्युफैक्चर करी गाड़ी और वो लाइट देना भूल गए इंजन की स्पेस में. तो लोगों ने बोला रात को अगर मारुति ख़राब होती है तो लाइट तो है ही नहीं. यू नो व्हाट डिड मारुति से? हमारी गाड़ी ख़राब ही नहीं होती, लाइट का क्या करोगे? विच वॉज सच अ क्लेवर स्टेटमेंट. You would need a backup when the first thing fails, right? You would not need a backup if the thing is not failing. So you would see appliances, Bosch and all which give 10 years of warranty. जहाँ पे बाकी लोग 1 साल की दे रहे हो 10 साल की दे रहे हैं. That is a way of signaling to the market कि हमारे प्रोडक्ट पे हमें इतना यकीन है कि वो 10 साल तक तो कहीं जा ही नहीं रहा. That is how we justify our prices. Right? Question number 4. A stock analyst criticized Costco saying Costco continues to be a company that is better at serving the club member and employee rather than shareholder. Do you think this is a fair critic? Why or why not? Do you think this is a fair critic? Why? Guys, who are shareholder? जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करा है, ठीक है. पार्शियल ओनरशिप, जिन्हें एथिकली कंपनी को पैसे बना के देने होते हैं, ठीक है. सो ही सेज कि इन द लॉन्ग रन दे वुड नॉट बी मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. तो जब प्रॉफिट ही नहीं बनाएंगे दे आर एक्चुअली मेकिंग अ फूल ऑफ द शेयर होल्डर. हु ऑल एग्री विद हिम? एक. बाकी लोग क्या सोचते हैं? He says that it does not have to be the rule of thumb because in the long run their cost of production would be low because they have a productive employees. So they would be actually maximizing revenue. Profit क्या होता है? जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस होता है माइनस द टोटल कॉस्ट. तो अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज नहीं करते पर आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दो तो उससे भी प्रॉफिट इंक्रीज होगा. ठीक है. But again they're giving out 40% of that. So what would your answer ideally consist of? What is this one point which we are missing, which would say make this answer कि this is not true? हाँ sir. Okay. He says that a stock price depend upon a lot of things.
which is the market confidence and stuff. So it could be that they're not providing dividends like constantly, but the stock price would be high, so they would get the money. That could be one argument. Good. What else? क्या सर? True, they have mentioned that in the case study. जब भी केस स्टडी का क्वेश्चन आता है, you will take out 50% facts from the case study. The rest 50% would be your inferences. जो आपने केस स्टडी पढ़ के you can reach out. Now imagine if somebody is giving you 200% return and the other person is giving you 3% return. आप कौन सा चूज करोगे? पहले सुन तो लो 200% किस चीज का दे रहा है. हो सकता है 200% 1 रुपए का दे रहा हो और दूसरा 3% 300 करोड़ पे दे रहा हो. This is exactly what is happening here. What they haven't told in the case study is the market share. But again, if some brand is giving back to employees and customer, तो उसका market penetration तो high होगा ही ना, market share तो high होगा. So we can always say कि जब market share high होगा तो they are having a bigger pie. तो bigger pie का छोटा slice भी better है than from a small pie a big slice. So we can even make that argument here. It does not always have to be कि you give very high return. अगर आप वैसे भी देखो जितने भी हाई पोर्टफोलियोज होते हैं स्टॉक मार्केट में भी, उनमें रिटर्न हाई नहीं होता. उनकी वैल्यूएशन इतनी हाई होती है कि वो रिटर्न वैसे हाई हो जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. Another analyst complained that Jim Sinegal has been benevolent. He's right that a happy employee is a product of long-term employee, but he could force employees to pick up a little more of the burden. Again, do you think this is a fair criticism? Why or why not? So they are trying to say that you can actually put more burden on the employee. And that would lead for better productivity as per it. Is it fair to say that? Will it be true? गाइज आई थॉट कि हम 6 केस स्टडी करेंगे, उसके बाद कुछ और पढ़ भी लेंगे. अब मेरे को लग रहा है हम 2 कर ले और घर खुशी खुशी चले जाएं, बहुत अच्छा होगा. Is this true? क्या हम अपने एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा काम दे सकते हैं? इसे समझते, सपोज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा स्ट्रिक्टली अपने एम्प्लॉयज़ से सिर्फ 8 घंटे काम करा रहा है एंड इन अ वीक उन्हें सिर्फ 5 डेज बुला रहा है, क्या उन्हें छठे दिन नहीं बुलाया जा सकता? बुलाया जा सकता है. क्या उन्हें बुलाना चाहिए? हम लोग तो नहीं कहेंगे, हम सारे एम्प्लॉयज़ हैं. वैसे नहीं बुलाना चाहिए, बट वो एक्स्ट्रा काम हो जाता है तो बुलाएंगे. हाँ बिल्कुल, जायदाद नाम ना कर दें. भाई समझो, अमेज़ॉन इंडिया में करती है, पार्शली करती है, बाहर वो ज़्यादा अच्छे से करते हैं. जैसे वो इंडिया में पैकेजेस पिक करते हैं आपके घर से, यूके में अगर आपको अमेज़ॉन का कोई पैकेज वापस करना है, यू हैव टू पोस्ट इट. वहाँ पे कोई जेप्टो वेप्टो नहीं है, आपको ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा. हाँ, तो आप समझ रहे हो, दिस विल डिपेंड. अब अगर दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इन द सेंस यू डोंट नो व्हाट वॉलमार्ट इज डूइंग. सपोज वॉलमार्ट इज एक्सपैंडिंग, ठीक है, Costco will surely not have enough money to expand in comparison to Walmart.
because they're distributing their money to their shareholders and stakeholders. तो उस केस में should the Costco not call their employees? For this particular question, you have to make a bold assumption कि ये किस सिनेरियो में हो रहा है. It could have multiple answers and all the answers are justifiable. अगर मैं ये देखूँ कि मेरा जो ओपोनेंट है वो आगे एक्सपैंड कर रहा है, देन आई शुड एक्सपैंड, देन आई शुड पुट अ लिटिल बिट मोर बर्डन. इट इज़ नॉट अनएथिकल. अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगी तो एथिक्स तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के. टाटा है तभी तो लोग उसमें जितने भी काम कर रहे हैं वो सैलरी इंजॉय कर रहे हैं. अगर टाटा ही नहीं रहेगा फिर कैसे करेंगे? बट एट अ सिमिलर टाइम डूइंग इट आउटराइटली without any competition does not make any sense. It is not ethical. क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ को वैसे ही परेशान कर रहे हो? और अगर आप इसी आर्ग्यूमेंट को लोगे तो दिस आर्ग्यूमेंट कैन बी पुट. अभी इंडिया में बहुत सारी डिबेट्स चल रही है whether you should have a 4-day working system like Spain or you should have a 5-day system, and then there are organizations which have 6-day system. ठीक है. और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को लगता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो देयर इज़ नो वर्किंग सिस्टम. आओ 1 घंटे मज़े करके चले जाओ, विच इज़ नॉट ट्रू. तो आपके हिसाब से इंडिया में कितने डे सिस्टम होना चाहिए? क्या सैटरडे संडे इनफ है? 4 days a week is not a bad system honestly. 2 दिन ही काम कर लेते हैं. सबको एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं. नहीं, ट्रू, दिस कुड बी वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स कि डेमोग्राफिक डिविडेंड ऐसा है कि वी कैन एक्चुअली जनरेट मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट. बट एट द सेम टाइम इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? कंपटीशन भी तो बहुत हाई है. A lot of industries are not saturated, they look saturated. For example, फैब्रिक इंडस्ट्री. जूडियो से पहले लोगों को लगता था कि वो बिल्कुल सैचुरेट हो चुकी, देयर इज़ नो वाइट स्पेस इन इट. अब जूडियो आ गया तो इतनी इंडियन होम ग्रोन ब्रांड्स आ गई है साथ में, बॉन्कर्स, सोल स्टोर, बेवकूफ, एंड दे ऑल आर डूइंग वेल. स्निच, मतलब वो इतनी पुरानी भी नहीं, दे मेकिंग रेवेन्यूज. तो इसका मतलब देयर वॉज अ वाइट स्पेस जो लोग देख नहीं पाए, राइट? तो मार्जिन सबका लो हो जाएगा तो उसमें कॉस्ट को भी तो रखना है. इट कुड एक्चुअली कल्चरली अफेक्ट अ कंट्री. द लास्ट क्वेश्चन, इज अ कंपनी दैट डज नॉट फॉलो द कॉस्टको मॉडल अ बैड कंपनी? आ जाओ. अगर कोई कंपनी कॉस्टको मॉडल फॉलो नहीं करी, इज दैट अ बैड कंपनी? इट्स अ गुड कंपनी. अपॉन वॉट? क्या मॉडल कौन फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं. मतलब लाइक वो 40% एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे, बट मे बी वो एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छे से उनको, या मैगी आजकल चलती है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलम जैसे कैब वगैरह वैसे उन सब चीज़ों पे ज़्यादा वो एक्सपेंड करते हैं, तो उनका मॉडल अलग हो सकता है ना. ट्रू, बट वुडंट इट बी एन एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल? मतलब हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव यूज्ड ऊबर? जिंदगी में एक बार ऊबर यूज करी आप लोगों ने? तो ऊबर इज प्रिटी सेफ नाउ. दे हैव ऑल द प्रोटोकॉल्स ऑफ सेफ्टी, बट एट द सेम टाइम दे हैव स्टार्टेड पेइंग वेरी लो टू देयर ड्राइवर्स, क्योंकि उनकी जो फ्लीट है वो बढ़ती जा रही है. नाउ दे आर नॉट पेइंग द सेम अमाउंट दे यूज्ड टू पे टू देयर ड्राइवर्स. इज इट एथिकल? वाई? अभी तो आपने बोला कि एथिक्स अलग हो सकते हैं. 50% एक्स्ट्रा पे करें, मे बी कोई कंपनी 20% एक्स्ट्रा पे करे या फिर 10% एक्स्ट्रा पे करे, जरूरी नहीं है कि उनके ही मॉडल पे वो खड़े. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बट प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑल्सो. अगर एक क्लास है, ठीक है, उसमें 10 रैंक्स है, आप 4th आए हो, ठीक है, एंड यू समबडी आस्क यू कि आपकी क्या रैंक आई, आपने कहा 4th,
तो खुश क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें पता है 3 रैंक्स भी तो थी जो आप ले सकते थे और आप नहीं ले पाए। तो अगर कोई 40% पे हो रहा है एक्स्ट्रा और मैं सिर्फ 20% हो रहा हूँ, तो 30% भी तो हो सकता था। देयर इज अ फीजिबल आउटकम आउट देयर which is economically viable and that is not being used. So doesn't that make the other firm exploitative because it is in relative, it is not absolute true. अगर आप absolute picture में देखोगे तो वो 20% वाला सही है, पर 40% से कंपेयर करो it's 20% less. Now it's not 20% more. तो वो exploitative नहीं हो गया? पूछ रहा हूँ, बोल नहीं रहा मैं क्या हुआ है, आई एम आस्किंग. हाँ, In this case, sir, even the drivers are unethical. They simply consider, right, I will take you offline. They are also opting for different types of methods. that is another case altogether. कि वो employees training में they are not doing a lot of investment in ethical side. But see, we are asking about the organization पहले. Driver is still an individual who does not have economic capacity. He is doing it out of economic capacity, right? कि मैं अपनी राइड का 45% शेयर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर क्यों करूं? मतलब मेरे को काम नहीं मिल रहा, ऑफ कोर्स आई नीड कस्टमर्स फ्रॉम देम, बट 45% इज अ लॉट. सम ड्राइवर्स आर ड्राइविंग 14 आवर्स इन अ डे, विच इज ह्यूमनली नॉट गुड. क्योंकि रोड पे एक्सीडेंट डिपेंड अपॉन कि बंदा कितना अवेयर है. आफ्टर 14 आवर्स ऑफ ड्राइव बंदा तो थकेगा ही ना. एक्सीडेंट इज बाउंड टू हैपन, और जब भी एक्सीडेंट होगा पैसेंजर फालतू में साइड लाइन में घुस जाएगा डैमेजेस में. ठीक है, अगर हम सिर्फ इस वाले एग्जाम्पल पे ही रहे तो व्हाट वुड योर आंसर बी? वुड यू आउटराइटली कॉल इट अ बैड कंपनी और वुड यू प्ले इट डिप्लोमेटिक के नो इट इज ओके? डिपेंड्स नहीं मैम, एक साइड तो लो. either you can say yes or you can say no, or you can be diplomatic about it. You can be like it is good also, it is bad also. यहाँ पे तो सर आप बेसिक पे के बारे में बात कर रहे हो ना, जैसे कि 50% वो बेसिक एक्स्ट्रा पे करते हैं, लेकिन कई कंपनी जैसे कि हमारी कंपनी है, ठीक है, हमारा पे सिंपल है, लेकिन और भी चीज़ें जो मोटिवेट करती हैं, लाइक वहाँ पे जो हमारे साथ बिहेवियर होता है, जैसे कि एक बंदा काम करता था एक कंपनी में, उसकी इनकम उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब नॉर्मल इनकम थी, बट जो उसको ट्रीटमेंट मिलता था ना, हाँ, मतलब बहुत अच्छा मिलता था, तो इस वजह से वो वहाँ पे काम कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटमेंट. okay. लाइक इंश्योरेंस मेडिकल और उसके अलावा जो एम्प्लॉयज वगैरह से ट्रीटमेंट होता है. So she is saying that in companies it could happen that you are not paid enough in terms of monetary benefits, but indirect benefits are there. Like they're paying for insurance, they're paying for your car, they're paying for your mobile, and the way they treat you. I am asking, are these factors strong enough to keep you embedded in the company? फेयरली पे होती है. Okay, let's come to the next case study. हाँ सर, पूछो. सर एक गाँव में कहावत है, जैसे कि सीख और ईख एक तो होती है. क्या? मतलब अगर किसी को हम फॉलो करेंगे या किसी के हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो सीख होगी, और दूसरा होगा ईख में सीखे होल्ड कर रहे हैं तो ईख में बात है. तो जैसे अब एयरटेल उसने जियो ने पैसे बढ़ाए, एयरटेल ने फिर बढ़ा दिए, हाँ. जियो बंदा करे एयरटेल फिर बंदा करता है, तो एक क्या सिस्टम से चल रहा है? एयरटेल अपने आप स्टेबल नहीं है, This is a very basic price replication war happening. लेकिन अभी जो 25% हाइक हुए आफ्टर द अंबानीज वेडिंग, तो वो तो सर हमारे पे तो उसका एयरटेल ने फिर बढ़ा दिया. एयरटेल तो कम से कम कॉम्पिटिटिव कर सके था सर, लो रख करके. But then you're assuming, guys, quiet. You're assuming कि Airtel was already running in profit. ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉस में चल रहा हो और जब से ही 25% हाइक हुआ वो समझ गया कि मार्केट ज़्यादा पे कर सकती है और उसने फॉलो थ्रू करा. सर अगर देखो वो 25%, अगर वो उसने 25% अगर वो कम रखता तो जियो के कस्टमर तो ऑलरेडी जो एयरटेल से थे जियो पे गए थे, वो जियो से फिर एयरटेल पर स्विच हो सके थे. पर वो सर इतनी जल्दी होता नहीं है.
आई टेल यू वाई, क्योंकि इस जो पूरा ये जो प्रोसेस है स्विच का, इसे इन्होंने ऑलरेडी इतना टीडियस बना रखा है, इतना मुश्किल बना रखा है कि आप अगर करना भी चाहोगे ना तो आप आलस में नहीं करोगे। आउट ऑफ कुछ नहीं, इतना आसान है, बस एक कॉल करना, 1 महीने का फ्री रिचार्ज मिलेगा। उस दिन पे 3 मंथ्स लगते हैं कि उसको 3 मंथ्स के बाद जाना। 3 तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके लिए तो आसान हो गया ना। अब आपने आज चेंज कराया, उसके बाद रिचार्ज बढ़ेगा तो आप चेंज किया 3 मंथ्स बाद। भाई जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो तो कर सकता है इजीली, 1 दिन के अंदर कर ले तो 5 दिन के अंदर हो जा। पर सर आप एक बात बताओ ना, ऑनेस्टली, अगर वो प्राइसिंग चेंज करते रहेंगे, आप अपना सर्विस प्रोवाइडर थोड़ी चेंज करते रहोगे, ऐसे थोड़ी होगे कि आप समझो। भाई आपके बैंक कौन सी बैंक में अकाउंट है आपका? कैनरा में। और सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट कैनरा देता है, कोई और बैंक देता है? कौन सा देता है बताओ? एक्सिस में खोलने के लिए 10,000 का पे पहले डालना पड़ेगा, 10,000 5,000 उसमें 10,000 भी तो रखने पड़ेंगे, उसमें 2500 लगेंगे बस। यार कैसी बात कर रहा। अरे मतलब इंटरनेट सर्विस चार्जेस भी तो होने चाहिए। नहीं, अरे अब जैसे मेरे घर में आप एयरटेल नहीं आ रहा नेटवर्क, अरे कुछ, अरे हाँ जैसे मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है, मैनेजमेंट नहीं करती। हाँ और ये सब किताब में ही तो रह जा। चाइना है सर, चीप लेबर प्रोवाइड करती है, मोडो एथिक्स नहीं मानती, वो डेवलप है, इंडिया में इतने क्यों वो मानती है सर, लेकिन वहाँ पे तो चीप लेबर है इतना। चीप? सर एक तरफ हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय को आई पे। सर एथिक्स का मतलब ये नहीं होता कि एथिक्स सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में आते। आप अगर चाइना में अडल्ट्रेशन करते हो, विच इज़ सबसे बड़ा चाइना का मिसनॉमर ये है कि चाइना के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, ऐसा नहीं है ट्रू। चाइना यूएसए में भी एक्सपोर्ट करता है, दे हैव डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दे आर पेइंग देयर लेबर अ गुड वेज, और वहाँ पे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड है। अगर आप वहाँ पे अडल्ट्रेशन करते हो तो उनका सीधा रूल है, आपका हाथ काटेंगे। वो बात नहीं करते कि भाई तूने ये मिलावट क्यों करी। आप इंडिया में देखो कि रोज़ घी नकली आता है, वहाँ पे कुछ नकली नहीं है। वो जो फ्लड आया था तो 40 लेबर्स को एंड वहाँ पे अगर हॉस्पिटल नहीं होगा ना तो 7 दिन के अंदर नया हॉस्पिटल बनाएंगे। दे आर नोन फॉर दैट। वो इधर नहीं बोलेंगे कि हम डिस्कस करेंगे, ये करेंगे। चाइना इज़ वन ऑफ द, वो हमसे कम से कम 70 साल आगे है। वहाँ पे 32nd फ्लोर पे लोग ऐसे चलते जैसे ग्राउंड फ्लोर पे चल रहे हो। अपार्टमेंट्स के बीच में से मेट्रो जाती है अंदर से। अगर आप एक्चुअली, एंड देयर प्लेसेस चाइना में जहाँ पे टूरिस्ट अलाउड भी नहीं है, जैसे कि वो सिर्फ हमारे लोगों के लिए है। हमने कोई घर थोड़ी खोल रखा है कोई भी आके कुछ भी देख जाएगा। मतलब जस्ट टू टेल योर पॉइंट कि अगर आप चाइना जाओ, आज वन ऑफ द हाईएस्ट वीज़ा रैंकिंग चाइना की है। आप चाइना के पासपोर्ट के साथ यूएस से जाना, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। अब वही बांग्लादेश के साथ जाओ, कोई छोड़ेगा नहीं। चाइना में इतना एथिकल कंडक्ट है, एडल्ट्रेशन अलाउड नहीं, फिर भी इंडिया में उसकी इतनी नेगेटिव इमेज क्यों है? तो चाइना का प्रोडक्ट है हमसे, लेकिन क्योंकि वो हमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। हम जो काम 6 घंटे में करते हैं, वहाँ का लेबर सिर्फ आधे घंटे से होता है। यहाँ का लेबर कम से कम 4 बार तो चाय पीने जाता है। दोपहर की नींद चाहिए। घर पे आपके वो काम कर रहे होंगे, शाम को शुरू, दे आर हैविंग अल्कोहल, दे आर लाइक कुछ नहीं होता, कल काम होना हो। वहाँ का लेबर इज नॉट लाइक दैट। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट मीन्स के इट्स लाइक अ प्लेस ऑफ वर्शिप, दे ट्रीटेड लाइक दैट। उनके स्टूडेंट्स ऐसे ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लास में था, बच्चे जूम 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 जा रहे थे मज़े में, कि बोलता रहे यार मौसम अच्छा, पकोड़े खाएंगे। हम तो एसी के लिए आए थे। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता ये। वहाँ पे अगर कोई ऐसे जाता है वो उधर ही एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं जा ज़िंदगी भर पढ़। और उसके रेज्यूमे पे लाइफ लॉन्ग रहता है कि इज़ अ ड्रॉप आउट, एंड रीज़न फॉर ड्रॉप आउट इज़ बिहेवियरल। उसे कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। आप ये देखो ना, सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर्स, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स चाइना से क्यों आ रहा है? एआई और एमएल पे जितने पेटेंट्स आ रहे हैं, 10 में से 8 पेटेंट चाइना के हैं। आप जितनी भी फर्म देख रहे हो, मेजर एक्विजिशन चाइना के पास है। हम सबके फ़ोन की रिकॉर्डिंग चाइना सुन रहा है। दे वॉन्ट टू, बिकॉज दे वॉन्ट टू डेवलप। और आप उन्हें देखो ना, 1947 से पहले उनका क्या हाल था, सेम टाइम लाइन है, कोई ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है।
उन्होंने तो बताया भी नहीं उन्होंने कब न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर दिए, कब वो इतना, दे हैव मेड अ सन, उस सन को 3 मिनट चला पाते हैं वो, और वो भी किससे, एलईडी लाइट से। यस सर, दे आर एबल टू जनरेट अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, दे आर वे अहेड इन एवरीथिंग। हम तो कोई कंपटीशन नहीं मानते वो इंडिया को, वो सिर्फ नंबर की वजह से डरते हैं थोड़ा कि इतनी गंदगी मच जाएगी अगर कुछ कर दिया तो। आप बताओ ना, कोविड हो गया तो क्या कर लिया किसी वर्ल्ड फोरम ने, सबको पता है चाइना का हाथ था, कर लो, क्या करोगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस कोई लगा पाया, सारा एक्सपोर्ट तो वही करते हैं, सैंक्शन लगा लो, किसी कंट्री में कुछ नहीं होगा। आप ये जो वायर्स है ना, चार्जिंग पोर्ट्स, ये चाइना से 25 पैसे के भी नहीं आते, 25 पैसे जो 100 रुपए का मिलता है मार्केट में। अब आप बताओ कि उनकी प्रोडक्शन कितनी हाई होगी। गोरिल्ला ग्लास करोल बाग में 5 रुपए का उतरता है, जो आप 250 का लगवाते हो, 5 रुपए का। और वो मैं उसको बता रहा हूँ जो हमारे रिटेलर्स खरीद के ला रहे हैं, वो बंदा तो कितने का कंटेनर उतार रहा है वो तो पता ही नहीं है। सारे ब्रांड के डूप्स, गुची, एलवी, प्राडा, सब के डूप्स मिलते हैं। देयर इज अ मार्केट 50 फ्लोर की, उसमें आप जो आपको जो डूप चाहिए वो मिलेगा। आप बता भी नहीं सकते डिफरेंस, ब्रांड वाला नहीं बता सकता सेल्समैन की ये गुची नहीं है ओरिजिनल। तो एथिक्स तो उनके बहुत हैं, एथिक्स में कहीं लैक नहीं कर रहे वो। पर पहले क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे बाद में। हाँ सर। सर क्या कारण है विभिन्न प्रकार की तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स करने के बाद भी भारत का युवा सरकारी सेवाओं के प्रति आकर्षित हो रहा है? अरे अरे मैम, ऐसा कौन सा डीएनए है? मैम गवर्नमेंट, बिहार में गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन नहीं होता। बिहार में जो बाइफिरिकेशन है वो 2 है, या तो आप आईएएस हो या फिर आप कुछ नहीं हो। आप इंजीनियर से सारे आईएएस ही बिहार के हैं। पर इसका मेन रीजन इज जॉब सिक्योरिटी। लाइफ इज अनसर्टेन, इंश्योरेंस हर चीज़ कवर नहीं कर सकता। आदमी को ये लगता है कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मैंने अपनी फैमिली को सिक्योर कर दिया है। दैनिक दिनचर्या और प्राप्त होने वाले संसाधन। हाँ, एवरीथिंग सर, इज्जत भी। आप सिर्फ ये समझिए कि आप इमेजिन कीजिए आप किसी कंपनी के सीईओ हो, बाकी जनता को आपसे कितना काम पड़ना है, कुछ भी नहीं। तो दे वुड बी लाइक हाय हेलो, जिसके भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट होंगे वो आपसे बात करेगा। आप वहीं पे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो तो आपका एंगेजमेंट लोगों से ज़्यादा है, तो एवरीबडी वुड बी हाय सर, हाय सर। तो ऑफ कोर्स इट इज़ सोशल कॉज भी और इकोनॉमिक कॉज भी है। सर हमारे यहाँ पे भारत में चल रहे उद्योग धंधों में जो प्रथम चरण के मजदूर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वे अपने आप को पूर्ण रूप से कभी भी आर्थिक सुदृढ़ महसूस नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? सर मैं भी नहीं कर पाता। वैसे तो मैं भी मजदूर की कैटेगरी में ही आता हूँ। हाँ, लेबर ही है भाई। जहाँ पे भी आपका गले में दर्द हो रहा हो और आप फिजिकली, इसके फलस्वरूप सरकारी कर्मचारी एक 4th क्लास का एमटीएस भी अपने आप को स्टेबल करके सामाजिक समरसता का प्रतीक बन जाता है। ये मैं आपको क्लास के बाद बताऊंगा क्वेश्चन। ये थोड़ा क्लास में ना बवाल मचा देगा। कुछ आग होती है जिसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन तर्कसंगत पर्सन है सर। हाँ, सार्वजनिक पटल पर रख सकते हो। नहीं रख तो सकते हैं, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्सेप्टेड सोशली। इस बार सर जो मैंने देखा है हमारे प्लानिंग कमीशन की नीति आई ना, उसमें ग्रुप सी एसएससी के में हमने देखा बीटेक, बीबीए, बीसीए और एमसीए सरीखे बच्चे करने के बाद में एमटीएस की नौकरी पे गए और उनका बड़ा अच्छा तर्कसंगत जवाब था कि यदि हम इस संबंधित तकनीकी योग्यता के साथ में आईबीएम में, एचसीएल और अन्य कंपनियों में जाए, नोएडा या गुड़गांव में, तो हमको इस स्तर पे रखा जाता है। उससे अच्छा स्तर सरकार एमटीएस में दे रही है। दैट इज नॉट वेरी ट्रू, क्योंकि वो लोग ये नहीं बता रहे कि वो किस, देखो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे कैपेबिलिटी के हिसाब से पे होता है। अब आप इंजीनियरिंग किसी Tier 4 कॉलेज से कर लोगे नाम के लिए, पता आपको कुछ होगा नहीं,
तो आपको 1.5 लाख रुपए कौन देगा? दे आर पीपल हु आर गेटिंग पेड 5 करोड़ रुपए भी साल का। आई नो समवन जो मेरे बैच से, जो मेरे से 2 साल छोटा है, वो 1.5 + 1.5 के पैकेज पे 1.5 करोड़ फिक्स सैलरी है उसकी और 1.5 करोड़ वेरिएबल है। अब उस जितना तो कोई भी आईएएस नहीं कमा रहा वाइट में। ऑल्सो प्राइवेट में क्या है ना, प्रमोशन भी होता हाँ है, वाइट में ही सर, मतलब देयर मैनी थिंग्स। तो इसका जो एक आंसर है ना, वो एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, इट विल अगेन बी परसेप्शन ड्रिवन। सर आपने एक सवाल भी किया था कि यदि कंपनी के संबंध में हमें कर्मचारी को किसी छुट्टी के दिन बुलाना पड़ जाए हाँ तो उसे हम बुलाए ना बुलाए, तो इसी का प्रति उत्तर है सर, यदि सरकारी किसी मंत्रालय में किसी कर्मचारी को छुट्टी के दिन बुलाया जाए तो उसके प्रति पूर्ति व क्षतिपूर्ति में दूसरे दिन काम के दिन अवकाश मिल जाए। ये पीठ नहीं, दैट इज वो, गाइस प्लीज, ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, प्लीज समझिए व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। आपको लग रहा होगा बट इट इज अ वेरी वेल थॉट इन द टर्म्स कि व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन नॉट बिहेव लाइक गवर्नमेंट, बट दैट इज नॉट ट्रू। हर डिपार्टमेंट में नहीं मिलता। अब आप पुलिस डिपार्टमेंट को देखो, उनके कोई फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं है। सर उनको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि पुलिस सेवा नियमावली में ना 12 महीने के बजाय 13 महीने की सैलरी देने का प्रावधान है नहीं, सर। पर वो तो इसीलिए है कि वो आकस्मिक सेवा कर सर, सकते हैं। वो आप इकोनॉमिक बेनिफिट को टाइम से थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे तो सबको छुट्टी भी मिलती है, पुलिस 7 दिन वर्क कर रही है। नहीं, दिस कैन नेवर एंड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इट डिपेंड्स अपॉन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। अब टीचिंग डिपार्टमेंट है, अगर हम इलेक्शन में ड्यूटी देते हैं तो वी आर पेड, हमें वो मानते हैं कि ये हमारा काम हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वी आर पेड जेनरसली। पर पुलिस, फायर ब्रिगेड वाले फ्री में करते हैं वो काम। दैट फ्री में नहीं करते सर। सर, पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए पे नहीं किया जाता। इलेक्शन ड्यूटी के लिए नहीं किया जाता, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्ट में, जिस संविदा के आधार पे हम भर्ती हुए हैं ना सर, उसमें जैसे सिविल कर्मचारी सेवा नियमावली में राशन भत्ता नहीं मिलता और पुलिस में मिलता है सर। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो अतिरिक्त कुछ लाभ दे रही है सरकार उनको, इसलिए होगा। सर आप अगर ये देखो, सिर्फ लाभ की बात नहीं होती ना, टाइम भी तो कोई चीज़ होती है ना। इट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे जब हम एथिक्स डिफाइन कर रहे हैं, हम नॉट, वी आर नॉट डिफाइनिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एथिकल है। इट इज ऑल्सो बिहेवियर, वर्क लाइफ बैलेंस एंड एवरीथिंग। So lot of people do not face that they have work life balance, तो they resort to something called corruption. अगर मुझे पता है कि मैं अपने बच्चे के साथ रह नहीं सकता, तो मैं कम से कम उसे सब कुछ ऐसा दूं कि उसे मेरी कमी महसूस। दिस इज बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी एंड इट वुड बी वेरी इजी टू से कि मैं ये काम नहीं करता। आज मैं आपके सामने कह सकता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं करप्ट नहीं होता, दैट वुड बी अ लाई। अगर मैं होता तो बहुत करप्ट होता। भाई क्यों नहीं होता? जब पावर है मेरे हाथ में, वो तो तब डिफाइन करूंगा ना मैं कि तब कैसा हूं। एनीवन विदाउट एक्सपीरियंसिंग अ गुड कैन से एनीथिंग अबाउट इट। तो आई थिंक कि वी आर नॉट, यू नो, एज अ पर्सन, मैं तो किसी पोजीशन में नहीं हूँ बताने के लिए कि किसी का क्या रीज़न है कि कोई क्यों कौन सी जॉब ले रहा है। सबके अपने अपने ड्राइविंग फोर्सेज होते हैं। पर मैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कह सकता हूँ कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन शुड बिहेव एथिकली एंड मॉरली। मतलब दे शुड बी फेयर, अनबायस्ड, वहाँ पे ट्रीटमेंट सबको सेम होना चाहिए। सर हमारा भारत 75% किसान की पृष्ठभूमि से चलता है और उसके बाद भी भारत में विभिन्न प्रकार के पर्याप्त मात्रा में उद्योग धंधे हैं। कोई भी उद्योग व्यवसायी किसान को उस हालत में क्यों नहीं ला पाया जिस हालत का वास्तविक हकदार किसान है? सर द क्वेश्चन अगेन कम्स कि क्यों लाए। क्वेश्चन कम्स क्यों लाए, क्योंकि अगर किसान को आपको एम्पावर करना है तो इकोनॉमिकली एम्पावर करोगे ना। क्या एक छोटा सा, ये मैं, आप मेरे से बाद में पूछना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर। ये माइक बीच में बंद हो गया, बैटरी खत्म है। हाँ हाँ, माइक तो हटा दीजिए। Guys, please read it. मैंने इसको एज अ केस टू इसलिए लिया है, आप आजकल हर जगह देख रहे हो कि सस्टेनेबल ब्रांडिंग, सस्टेनेबल फूड, ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग चल रही है, जहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हमारा मिल्क अच्छा है, एंड वो बहुत सारी कंज्यूमर स्पेस ले रहा है। सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें व्हाट आर द एथिकल थिंग्स टू टेक केयर ऑफ।
सर ये भी चाहिए क्या? Have you guys noticed this trend? The one they have stated in USA? इंडिया भी अब एक्सपोजर हो चुका है इंडिया को पिछले 8-9 साल से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का. It started with 2015. Now तो it's on their all-time high. I think a greater peak would reach, but अब organic products have started coming in the market. You would see them in your everyday markets. Normal street vendor is also telling कि ये लौकी organic है, इसमें सही खाद है और ये actual अच्छी खाद वाली नहीं है. सबने फर्स्ट पेज पढ़ लिया था ना? सेकंड पेज है. सर अब कहाँ जा रहे हो? 10 मिनट तो रुक जाओ. 10 मिनट का ही काम है. फिर तो खत्म. Have you guys read it? जब आप ये पढ़ रहे हो एक बार सोचना, इज इट पॉसिबल टू डू द सेम इन इंडिया? क्या आप कंज्यूमर का बिहेवियर उसके परचेज से समझ सकते हो? दिस इज अ वेरी बिग एक्सट्रापोलेशन. आ वेरी, हाँ स्पॉइल्ड तो है हम, क्या करें अब. We would not be able to discuss the whole case study, but let us discuss one case. जो मैम ने बोला, do you think Indian consumer are ethical? हम ब्रांड पे पूरा ओनस
छोड़ रहे हैं एथिक्स का कि ब्रांड एथिकल हो, ब्रांड एथिकल हो, क्या हम लोग एथिकल हैं? सस्ता वो तो चलो ठीक है, बट ट्रू, but what I really mean is कि people order from Myntra, they sometime wear the clothes and उसके बाद रिटर्न कर देते हैं, टैग नहीं काटते. Zara एंड H&M के साथ तो सभी करते हैं. Amazon, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं हफ्ते भर, 2 हफ्ते भर, और उसके बाद कहते हैं दिस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एंड दे रिटर्न, बट दैट अफेक्ट्स द बिजनेस. Are Indian consumer ethical? And when you define ethics for Indian consumer, how are you going to judge it? क्या सेम पैरामीटर होंगे फेयर के, अनबायस्ड? बायस तो हम लोग बहुत हैं, वरना एडवर्टाइजमेंट ही क्यों होती? एडवर्टाइजिंग इज बेस्ड ऑन क्रिएटिंग दैट बायस. तो व्हाट वुड बी द पिलर्स ऑफ एथिक्स फॉर अ इंडियन कंज्यूमर? पाँच मिनट बचे, कुछ तो बोल दो, आवाज ही आ जाए कानों तक. Okay. Ma'am says that you should hold the grounds of morality and legality together. If something is banned, you should not buy it. ठीक है? You should not buy drugs. You should not. अरे सर हंस कितनी खरीद रहे हो सर? मतलब उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये है. चलो, what else? I don't think so all the Indian consumer are going and buying illegal stuff. Like there is a certain percentage, and then asking them not to buy would be very difficult because it's an addictive substance and stuff. But what else can Indian consumer to do to become ethical? Bargain करना छोड़ दे. हाँ कंपनी. But when consumer does not take a product, guys, she says that a consumer should always buy on bill. पर जब consumer bill पे नहीं खरीद रहा, it is putting himself in the risk more. क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. मतलब कंज्यूमर अपने आप को रिस्क पे डाल के वो चीज ले रहा है. कंज्यूमर इज गेटिंग पेड फॉर द रिस्क ही इज टेकिंग. हाँ मतलब अनएथिकल तो है, बट देन इट कैन ऑलवेज बी जस्टिफाइड कि पेइंग कैपेसिटी नहीं है किसी की. somebody cannot pay that 18% GST. जैसे कार्स पे पीपल आर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस, 41% टैक्स दे रहे हैं, तो वो भी तो एथिकल नहीं है. 41% टैक्स इज अ लॉट ऑफ टैक्स. सर वो तो 3.99 मीटर के हिसाब से होता था. अगर कार लेना है, मैं छोटा कार ले लूं. मैम छोटे का ही बता रहा हूँ आपको. वो जो आप 390 मीटर का देख के आए हो, मेरे को भी पता है, उसी का बता रहा हूँ. बड़ी पे तो ज्यादा लगता है, बड़े पे तो 52-55% है टैक्स. टैक्स सिर्फ वो थोड़ी होता है, आरटीओ की ड्यूटी है, इंश्योरेंस है. अगर आप ओवरऑल देखो तो इंडियन कंज्यूमर इज पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्स. ऑन रोड प्राइस और एक्स शोरूम प्राइस में डिफरेंस बहुत सब्सटैंशियल आ जाता है. और पेट्रोल पे टैक्स अब सभी है. नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट टैक्सिंग का प्रिंसिपल है ना, यू शुड नॉट बी टैक्स ट्वाइस फॉर द सेम प्रोडक्ट. यहाँ पे तो प्रोडक्ट के यूज के लिए अलग टैक्स पे कर रहे हो, खरीदने के लिए अलग कर रहे हो, फिर गेन्स पे अलग टैक्स कर रहे हो. चलो ये तो एक अलग सिस्टम हो गया टैक्स का. व्हाट एल्स? हाउ कैन आई मेक अ इंडियन कंज्यूमर? कंज्यूमर शुड बी इन्फॉर्म्ड और अवेयर. जैसे हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं. जैसे अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी वो बॉर्नविटा वाली, हेल्थ ड्रिंक में उसको एडवर्टाइज करते थे. तो गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट बॉर्नविटा.
ये तो कंपनी की प्रॉब्लम आ गई ना इसमें, तो कंपनी वाज एट द रॉन्ग एंड। कंज्यूमर क्या करता है अनएथिकल खरीदते हुए? सर एक कारण ये भी है, जो कंज्यूमर है सर, ये सेलिब्रिटीज है, नया ब्लाइंडली फॉलोवर है, कभी सब बाद में शराब पान का आपका कर देते हैं, उसका उसका देखते नहीं, वो है नहीं है, बस उसके चक्कर में खरीद रहा है। ओके ओके, बट टू रेक्टिफाई दैट, जो ये सेलिब्रिटीज हैं दे आर पेड, ठीक है? तो इसमें इट इज बेस्ड ऑन द पर्सन, मतलब ये तो मार्केटिंग का पार्ट है। हाँ पर ओके ओके गाइस देखो, आई गिव यू अ टास्क, इसमें 20 केस स्टडी है, समहाउ मैं आज आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? अगर वी हैव ऑफलाइन क्लास वेरी गुड, इफ वी डोंट, आप अगले हफ्ते तक मुझे 6 केस स्टडीज के आंसर मेल कर देना, इट्स कम्प्लीटली वॉलेंट्री, ठीक है? जो मुझे मेल करेगा उसको मैं वापस रिप्लाई करूंगा कि कहाँ कहाँ पे एरियाज पे वर्कआउट करना है, कहाँ पे आंसर वेग है, ठीक है? मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब आप एक एग्जाम देते हो आपको ये नहीं पता होता कि आंसर कैसे चेक हुआ है मेरा। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरा एक अलग मेट्रिक है, दिस इज व्हाट आई थिंक एनी फैकल्टी वुड एक्सपेक्ट आउट ऑफ द पेपर। एथिक्स का पेपर ये मत सोचना हम ये लिखाएंगे सच बोलना अच्छी बात और मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि इसमें क्या है, फाइनेंस तो ट्रिकी है, इसमें मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर ये इतना आसान होता तो ये आपको पढ़ाया भी नहीं जाता। आपका वैल्यूबल टाइम है, मेरा टाइम क्या, आप लोग इतने सारे, आपका हर एक मिनट मिलके ही 5 घंटे बनाता है। अगर मैं आपका 1 मिनट वेस्ट करूँ तो मैं 5 घंटे इन टोटालिटी वेस्ट कर रहा हूँ। 2 घंटे की क्लास है, आप सोचो कितने घंटे बनते हैं, तो कुछ तो लॉजिक होगा ना। इसके में आगे इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू थ्योरीज, ठीक है? नॉर्मेटिव थ्योरी के वो थ्योरी एंड वेयर कैन दोस थ्योरी बी अप्लाइड, ठीक है? आई विल टीच यूजिंग स्लाइड्स ओनली बट मच फास्टर। तो अगर आप बता कर दोगे तो इट वुड बी वेरी गुड, अगर आप नहीं करोगे स्टिल इट विल बी वेरी गुड। क्या? अच्छा ठीक है, आपको ईमेल आईडी पता है मेरी, मैं मेल में ही मेंशन कर दूंगा सबको, कर देना, अच्छा बात है, वरना पेपर चेक करते हो टाइम नहीं लगेगा, खाली पेपर में क्या टाइम लगना होता है, चक चक चक। I will send it to one of your groups. हाँ आई नो, आपके कौन से ग्रुप में मेजॉरिटी लोग हो जो सबको भेज सकते हो? मैं एक ऋषि को भेज दूंगा, एक इन मैम को भेज दूंगा, और अलेक्जेंडर को भेज दूंगा, वो उसका व्हाट्सएप नेम है, ठीक है भाई, वो उसका व्हाट्सएप का पूरा है, तो हाँ वैसे पता है यार मुझे नाम। उसके बाद भी अगर किसी को नहीं मिलता, काइंडली रीच आउट टू देम, ट्राई टू गेट इट। आप 2 हफ्ते में भेज देना, बट भेज देना, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है? थैंक यू सो मच।